Today my topic is about simple compound and complex sentences. ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो हम आज जानेंगे we will know today about what is simple sentence and what is compound sentence and what is complex sentence. Why is a simple sentence different from a compound sentence? Why a compound sentence is different from a complex sentence? What are the formulas which we use to identify the compound sentence and complex sentences? So today I will teach you some formulas through which we can identify, we can make a compound sentence into a complex sentence into a compound. So what are those formulas? I will write down here those formulas and I will start my lesson. So formula क्या है? Fan boys है, fan boys. The first formula which I will use to make you understand compound sentence is fan boys. And the next formula number 2, absu with, absu, absu, absu with, w raised to power 9 and t raised to power 5. What is this? W raised to power 9 and raised to power t raised to power 5. This absu with formula is used in complex sentences. We can make complex sentence with this formula. So with the formula of fan boys we can identify a compound sentence. So before I will talk about fan boys and absu with, it is very important. First you have to know about a simple sentence. What is a simple sentence? Simple sentence क्या है? Simple sentence. Simple sentence. Simple sentence क्या होता है? Simple sentence किसको कहते हैं? ऐसे simple sentence वो होता है जिसमें एक subject होता है, एक finite verb होता है. A simple sentence is that sentence in which a subject and a finite verb is working. Simple sentence मैं यहाँ लिखूंगा examples. I will write down here examples to make you understand. Simple sentence के examples जो हैं, he go to school. He goes to school. I go to school. तो इसमें जो I आ गया है ये है subject and go is equal to है verb. I जो है ये subject है and go जो है ये verb है. ये complete sentence देता है. It gives us a complete thought. It gives a complete meaning. I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. तो इसमें एक subject है और एक finite verb है. So what is this finite verb? A verb which changes according to the tense, according to the subject and according to the number. So we call it a finite verb. In simple sentence there is only one subject and one finite verb, that is here. I is subject and go is a verb. Now next sentence I will write down here. ये simple sentence है. दूसरी एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूं आपको वो है he या he नहीं लिखेंगे, they लिखेंगे. They write a letter. वो एक खत लिखते हैं. दे जो है ये सब्जेक्ट है और राइट जो है ये है वो कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. इट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग. देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. तो एक और एग्जांपल मैं देने वाला हूं जो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा तो वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस. तो एक और एग्जांपल मैं देने वाला हूं आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड. शी वेंट टू शॉपियार्ड. She went to शॉपियार्ड to buy an apple. तो मैंने आपको बता दिया कि एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है. तो सिंपल सेंटेंस ये अगर आप ये सब्जेक्ट है शी, ये है वर्ब, तो ये अगर आप कहेंगे शी वेंट टू शॉपिंग टू बाय एन एप्पल,
यहां एक और वर्ब आ गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसके पहले हम इस्तेमाल टू इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये टू इनफाइनाइट बन गया इधर। यहाँ टू बाई है, टू बाई है। अगर बाई खाली होगा तब हम काउंट करते हैं, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन इसके पहले जो है ये है टू, इसका मतलब है ये टू इनफाइनाइट है। सो वी हैव ओनली वन वर्ब देयर, शी सब्जेक्ट एंड वेंट वर्ब। सो ये टू इनफाइनाइट है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये टू इनफाइनाइट है, ये वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है। सो ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये वेंट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और ये टू बाय है, यहाँ एक और आ गया यहाँ, तो ये टू इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब काम करेगी, उस सेंटेंस को कहते हैं, ये है सिंपल सेंटेंस। मेक इट क्लियर। नाउ another example, she has seen me। तो यहां she जो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है seen, फाइनाइट वर्ब है she has seen me। ये टू इनफाइनाइट है नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। So the next I will teach you these compound and complex sentence. What is a compound sentence? A compound sentence is that sentence which is made up of two or more than two independent clauses joined together with a coordinate conjunctions। तो coordinate conjunctions क्या होते हैं, जो मैंने बता दिया फॉर्मूला फैन वाइज। तो फैन वाइज क्या होता है, पहले हम देखेंगे फैन वाइज क्या होता है। फैन का कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। फैन एफ से होता है, फैन एफ का होता है, एफ मींस फॉर हियर, तो ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एंड एस सो। S means here so। तो फैन बाइज का क्या मतलब है। फैन बाइज हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देता है। तो फैन F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स आर, Y मीन्स येट, एंड S मीन्स सो। तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इनको लिंकर्स भी कहते हैं। वी कॉल देम आल्सो लिंकर्स, वी नेम देम आल्सो लिंकर्स इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम देखेंगे, तो उनको जोड़ेंगे। तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे इन्हीं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 से। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस से जोड़ेंगे तो वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मींस वेयर वी मिक्स टू और मोर देन टू टुगेदर विथ a coordinate conjunction with a linker, that sentence is called a compound sentence. For example, I will write down here, he is a poor man। ये फुल मीनिंग देता है, इट गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट। ही इज ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। वो एक गरीब आदमी है, वो ईमानदार है। तो ये ही इज ए पुअर मैन सिंपल सेंटेंस, देयर इज, ये सिंपल सेंटेंस है। तो ही इज ऑनेस्ट, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज ए पुअर मैन, इट गिव्स अस कंप्लीट थॉट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस है। सेकंड सिंपल सेंटेंस है, सेकंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस हियर इज ही इज ऑनेस्ट, तो वो ईमानदार है। ये भी बराबर माने देता है, वो भी बराबर माने देता है। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक कंपाउंड बनेगा। तो वो कंपाउंड बनेगा तो किससे मिलाएंगे, लिंकर्स से। किससे मिलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जो फैन बाय से निकला है। तो हम लिखेंगे ही इज, कंपाउंड कैसे बनाई जाएगी, ही इज ए पुअर मैन, यही लिखेंगे पुअर मैन, और बट कामा इधर लिखिए, ही इज ए पुअर मैन कॉमा बट ऑनेस्ट। हमने लिखा ही इज ए पुअर मैन बट ऑनेस्ट, मैंने बट ही इज ऑनेस्ट नहीं लिखा है। ही क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि व्हेन इन ए सेंटेंस subject are same, we need not to write down the subject in second time।
सो ये रूल है इंग्लिश में। तो हम उस वक्त अगर एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट दो बार आ जाए तो हम एक ही बार लिखते हैं। तो ही इज ए पुअर मैन बट ऑनेस्ट, ही इज ए पुअर मैन बट ऑनेस्ट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर इज, हम लिखेंगे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। फुल माने देता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। तो दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाता है। ही इज ए टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। तो हम इन लिंकर से कैसे बनाएंगे इनको, तो हम लिखेंगे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर and teaches, is a teacher comma and teaches English, and teaches English। तो लिंकर जो इस्तेमाल मैंने इधर किया है, द लिंकर विच आई यूज हियर इज एंड। तो एंड ने इन दो जुमलों को आपस में मिलाया है। द एंड coordinate conjunction joined together two independent clauses. That the one clause was he is a teacher, this is one, and the next is he teaches English, तो वो अंग्रेजी पढ़ाता है। इन दोनों को कंपाउंड एक ही जुमले में तब्दील किया है, चेंज किया है। किसने, लिंकर ने। किस लिंकर ने, कोऑर्डिनेट कंजक्शन ने। वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा इस्तेमाल हमने यहाँ किया है, वो हमने किया है इस्तेमाल है एंड, जो यहाँ निकला है फैन बाय से। तो यहाँ बट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ एंड इस्तेमाल हुआ है। तो हम एक और जुमला लिखेंगे, ए वन मोर सेंटेंस आई विल राइट डाउन हाउ टू मेक यू क्लियर दिस कंपाउंड सेंटेंस। तो वन मोर एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू लूज वेट। मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लूज वेट। अच्छा, ये कंप्लीट मीनिंग देता है, इट इज इंडिपेंडेंट क्लास। तो दूसरा इसका लिखेंगे, ही सेंड्स मी चॉकलेट्स डेली। वो हमें चॉकलेट हमेशा बेचता है, वो हमेशा मुझे चॉकलेट बेचता है। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, फैन बाय से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट कनेक्शन लिंक कर निकालेंगे, तो इन दोनों को एक ही जुमला बनाएंगे। दैट सेंटेंस विल इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। हम उनको कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड का एक ही बनाएंगे। तो एक ही किससे बनाएंगे, लिंकर से, जो लिंकर से जोड़ेंगे। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अगर आप बताओ क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू लूज वेट, शाबाश, आई वॉन्ट टू लूज वेट कॉमा yet, तो शाबाश, yet क्या लिखेंगे, yet he sends, yet he sends me chocolates। तो हमने यहाँ द लिंकर जो यूज किया है हमने yet। Here the linker we use it is coordinate conjunction, that is yet। yet कहां से आ गया, फैन बाय से निकाला हमने, जो हमने फैन बाय फॉर्मूला लिखी है। तो यहाँ yet इस्तेमाल किया है टू मेक टू सेंटेंस into one, to make two independent clauses into a compound one। तो फर्स्ट में हमने बट इस्तेमाल किया, दूसरे में एंड इस्तेमाल किया है और तीसरे में yet इस्तेमाल किया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। तो वो जुमला जो बनता है, वो सेंटेंस जो बनता है, वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। दैट सेंटेंस इज टर्न्ड इनटू कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ coordinate connections in linker C। Now the next one is complex sentence। complex क्या होता है, complex sentence, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और बाकी जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। A complex sentence is that sentence in which one is independent and one or more clauses are dependent। In complex sentence we join the dependent and independent clauses with the help of adjective with।
So another formula I will write down here is FSU width. FSU width W raised to power 9 and T raised to power 5. W raised to power 9 and T raised to power 5. तो FSU width किस काम आते हैं? तो इसमें हम निकालेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? ए जो है ए FSU ए से निकला है एज, तो ए से निकलेंगे although ए से बनाएंगे as long as ए से निकालेंगे as long as और ए से निकालेंगे as soon as. तो ए से बन गए ए पे बनाए हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो बन गए हैं ए पर, तो वो है as, although, as long as and as soon as. Now the next is B जो है ये because है. B means because and S means since. S means so that. तो S से आएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन बनेगा since भी और so that भी लिखेंगे. तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या बनाएंगे हम? क्या है? U है unless until. U का मतलब है unless and until. तो U पर बन गया. W से क्या होगा? W 9 बार आएगा. W का मतलब है where, which, when, what, whether, whenever, wherever और निकलेगा wherever क्या निकलेगा? शाबाश. whom, while. तो ये है 9WH. तो W रेज़ पावर 9 का मतलब है W से 9 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आ जाएंगे. तो 9 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो आएंगे वो यही है. T पर आ जाएंगे 5. T, that, therefore. T का मतलब है that, therefore, till, though और what, then. तो ये आ जाएगा T पर. H का मतलब है how. तो ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. मैं तेज इसलिए चलता हूं क्योंकि मेमोरी हमें साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ेगा 2 मिनट में, 3 मिनट में. तो आई विल राइट ओवर है एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. व्हाट इज दिस? वो हम लिखेंगे ही इज ए पुअर मैन. वही ही इज ए पुअर मैन. ही इज ऑनेस्ट जो हमने पहले लिखा है, जिसको बनाया मैंने कंपाउंड सेंटेंस. ही इज ऑनेस्ट. हम लिखेंगे इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन आई चेंज इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी हैव टू मेक यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. सो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही इज ए पुअर मैन दो ही इज ऑनेस्ट. He is a poor man, though he is honest. He is honest. तो दो हमने इस्तेमाल किया है वह यूज्ड हियर लेकर सबऑर्डिनेट कंजक्शन द जो निकला है FSU विद से. तो अनदर एग्जांपल जो मैं लिखने जा रहा हूं इधर वो है कौन सी, अगर आप बता सकते हैं शाबाश. He has lost the watch. He has lost the watch. तो उसके बाद क्या है? He found it again. हम लिखेंगे इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो ये दो इंडिपेंडेंट क्लासों को आपने मिलाएंगे तो हम उसको बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हम लिखेंगे ये He found the watch. तो दूसरा आ जाएगा पहले. He found the watch that he lost.